Good morning everyone. Today we will start remaining part of test paper 1. Okay. So open page number 68 and question second is fill-ups. First, plant make food in presence of. Open your book page number 68 and write fill in the blanks, fill with help of pencil in your book. So first is plant makes food in presence of sunlight. First fill with sunlight. प्लांट्स अपना फूड बनाता है किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में. सेकेंड, आर डैश प्रोवाइड आवर बॉडी विद ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन राइट अमाउंट. एक ऐसी डाइट जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देती है, जितनी ज़रूरी होते हैं उतने न्यूट्रिएंट्स देती है, हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराती है, उस फूड्स को क्या बोलते हैं? अ बैलेंस्ड डाइट. सेकेंड, फिल्ड विथ बैलेंस्ड डाइट. And third one is a uniform help us to identify the profession of a person. यानी एक किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशन, यानी वो क्या प्रोफेशन, किस जॉब में है, वो उसकी यूनिफॉर्म आइडेंटिफाई करती है. ओके, उसकी यूनिफॉर्म से हमें पता चल जाता है कि ये पुलिस है या ये डॉक्टर है. ओके, सो प्रोफेशन. And fourth one is the process by changing of water into water vapor is called evaporation. वाटर से जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है by heating is known as evaporation. जब any liquid change into gas by heating is known as evaporation. Evaporation. Then fifth one is carnivorous use canine to press into the tear flesh of prey. यानी किसी भी शिकारी के मांस को चीरना, फाड़ना, चीरता है वो, टीयर्स करता है यानी कार्निवरस. किसके थ्रू? कैनाइन्स टीथ के थ्रू. ओके, देन नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. Identify the following. First is the green color substance in leaves that trap sunlight. यानी leaves में जो green color substance होता है, green color होता है, उसी के कारण वो green color की होती है leaves, वो sunlight को trap करता है. तो वो green substance होता क्या है? Green substance known as chlorophyll. सेकेंड वन इज अ मिनरल दैट वी नीड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ. यानी एक ऐसा मिनरल जिससे हमारी बोन्स और टीथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उस मिनरल्स को क्या बोलते हैं? कैल्शियम. थर्ड वन इज वी शुड ऑलवेज वियर इट वाइल राइडिंग अ बाइक. जब हम बाइक पे हों तो हमें क्या पहनना चाहिए? Always we wear helmet. And fourth one is a natural fiber that absorbs sweat and keep us cool in summer. यानी वो नेचुरल फाइबर जो कि हमारे स्वेट को, यानी हमारे पसीने को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है और हमें, हमारी बॉडी को कूल रखता है समर में. तो उस फाइबर्स को क्या बोलते हैं? कॉटन फाइबर. So we always wear in cotton. Always wear cotton in summer. Okay, because cotton absorbs sweat and keep us
cool in summer. And fifth one is the process of changing of water vapor into water on cooling. यानी जब वाटर वेपर कन्वर्ट हो रहा है वाटर में कूलिंग के थ्रू, बाय कूलिंग, इज नोन एज कंडेंसेशन. Okay, then next is write question. So take out your notebook. Take out your notebook beta and write properly. First question, how do plants make their food? Answer the following question. How do plants make their food? प्लांट्स अपना भोजन कैसे प्रिपेयर करता है, कैसे अपना फूड प्रिपेयर करता है? सो प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. Plants take water and mineral from soil and CO2 from air and prepare the food. So answer right. Plants make their food in the presence of sunlight with the help of chlorophyll. Plant take water and mineral and minerals from the soil and CO2 from air. And CO2 means carbon dioxide. CO2 from air and prepare the food. Okay, then next question, write properly. Plants make their food in the presence of sunlight. यानी प्लांट्स अपना फूड बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल की हेल्प से. एंड प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल से उसको क्या क्या मिलता है, मिनरल एंड वाटर एंड CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके प्रिपेयर द फूड. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Next question is, why are protein rich food called bodybuilding foods? Why are protein rich food called body building food? So answer is, because protein help the heal, because protein help the heal to heal wound or damaged part of the body, and help us to grow, प्रोटीन रिच फूड्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्यों कहा जाता है? सो बिकॉज क्योंकि प्रोटीन हेल्प टू हील वाउंड और डैमेज पार्ट, यानी कहीं चोट लगी है या कुछ इंजरी हुई है तो उसको रिकवरी करने के लिए प्रोटीन हेल्प करता है एंड हेल्प अस टू ग्रो, और ग्रो करने में भी हेल्प करता है. सो प्रोटीन रिच फूड कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. एंड क्वेश्चन थर्ड इज, what first aid will you give to a person who has fainted? Answer right. In the case of first we should raise the leg of a person above the head level. This will allow the blood flow into the brain. Listen, what first aid will you give to a person who has fainted? Fainted means कोई बेहोश हो गया अगर, तो उस पर्सन को आप क्या फर्स्ट एड देंगे? सो वी शुड रेज द लेग ऑफ अ पर्सन अबव द हेड लेवल, यानी उसके हेड लेवल से उसका जो लेग लेवल है, लेग को वो अपर साइड कर देना चाहिए, यानी हेड लेवल को नीचे और लेग्स को अपर साइड होना चाहिए. दिस विल क्यों करना चाहिए ऐसा? दिस विल अलाउ द ब्लड फ्लो इनटू द ब्रेन, जिससे उसके यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ब्रेन तक जा सके, क्योंकि अनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड इनटू ब्रेन कॉज फेंटेड कंडीशन. ओके, क्योंकि जब अनसफिशिएंट सप्लाई होती है ब्लड की ब्रेन में, तभी फेंटेड कंडीशन आती है.
Question fourth is explain the adaptation in plant with example. With an example. So answer is plants undergoes changes. Plant undergoes changes in their structure or behavior to survive in their environment. Such changes that make plant suited to their environment is called adaptation. आंसर राइट. प्लांट्स अंडरगोज चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चर. इन प्लांट्स में अपने आप के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होता है और बिहेवियर होता है, अपना चेंज बिहेवियर करता है वो काहे के लिए, टू सर्वाइव इन देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए. सो सच चेंजेस दैट मेक प्लांट सूटेड टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन. वो चेंजेस जो कि इन्वायरमेंट में उसको सर्वाइव करने के लिए कैपेबल बनाता है, उस चेंजेस को एडेप्टेशन कहा जाता है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज question last, fifth question is how does the polar bear survive in extreme cold climate of Antarctica. एंटार्क्टिका का क्लाइमेट जो है वो
बहुत कोल्ड है और वहाँ पर पोलर बियर कैसे सरवाइव कर पाता है. ओके, सो आंसर इज पोलर बियर has a layer of fat under skin and a coat of fur that keep us warm. Keep it warm, keep it warm so it can easily survive in extreme cold condition. पोलर बियर की स्किन के जस्ट अंदर एक फैट की लेयर होती है. ओके, पोलर बियर हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन एंड अ कोट ऑफ फर, और उसका फर का कोट होता है जो उस दैट कीप अस इट वार्म, वो उसको अपने आप में अंदर गर्म रखता है, वार्म रखता है. सो इट कैन ईजिली सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, इसीलिए वो वहाँ की इतनी ज़्यादा ठंड में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है. ओके, थैंक यू and have a nice day.